Good morning students and welcome back to my channel KB Education. Students, in the last class we have discussed the topics of distance, displacement, their differentiation, their numericals and a brief introduction to speed and velocity. Today we will deal with the topics of types of speed, types of velocity and acceleration. So I have made a flowchart for you showing types of speed. First type is uniform speed, next non-uniform, next average and next is instantaneous speed. Okay, so coming to first, that is uniform. Uniform speed means when a body travels equal distances in equal time intervals. Let me show you with an example. Suppose a person is there, okay, he travel some part of his journey, let it be 10 kilometer in 2 hours, next 10 kilometer again in 2 hours and next 10 kilometer again in 2 hours. Okay, so as per the definition we can see very clearly that the person is traveling equal distances in equal time intervals. So this type of speed is uniform speed. Okay, coming to next, that is non-uniform speed. In non-uniform speed, the body travels unequal distances in equal time intervals. So, okay, for example, the person is traveling 10 kilometers in 2 hours, next 15 kilometer in 2 hours and next 9 kilometer in 2 hours. So in this we can see very clearly that there is no uniformity in his speed. Okay, so this type of speed is non-uniform. So how can we will define it? When a body travels unequal distances in equal time intervals. Okay, so non-uniform speed is a type of speed in which a person is traveling unequal distances in equal time intervals. Okay, so this type of speed is non-uniform. Coming to next, that is average speed. So what is average speed? Average speed is defined as the ratio of total distance to the total time taken. Okay, so we can write average speed is equal to total distance divided by total time. Okay students, now coming to the example of average speed. Let a car is there, okay, car is traveling 10 kilometer in 2 hours, next 15 kilometer in 3 hours, next 20 kilometers in 4 hours and next 25 kilometers in 5 hours. Okay, so what was the formula for average speed? It was total distance divided by total time. So total distance means 10 plus 15 plus 20 plus 25. Okay, now timings 2 plus 3 plus 4 plus 5. So calculate it. 70 divided by 40.
14, sorry. Okay, it comes out to be 5 kilometer per hour. So for the whole journey, the average speed of this car comes out to be 5 kilometer per hour. How we have calculated total distance means 10 plus 15, 25, 25 plus 20, 45, then 25. It is 70. Then 2 plus 3, 5, 5 plus 4, 9, 9 plus 5, 14. Okay, 70 by 14 comes out to be 5 kilometer per hour. Okay, this was the example of average speed. Coming to next, that is instantaneous speed. Instantaneous word, it is telling its meaning, means speed at a particular instant of time. So what is instantaneous speed? Speed at a particular instant of टाइम. ओके, आप लोगों ने एक डिवाइस का नाम सुना होगा, स्पीडोमीटर. व्हाट इज स्पीडोमीटर? इट इज अ डिवाइस विच इज यूज्ड इन व्हीकल्स टू डिटरमाइन द स्पीड. व्हाट काइंड ऑफ स्पीड? इंस्टेंटेनियस स्पीड. ठीक है. स्पीडोमीटर जब आप लोग कार ड्राइव करते हो तो आप लोग बहुत इजीली चेक कर सकते हो कि 11 o'clock मीन्स जब आपने चलना स्टार्ट किया एट 11 o'clock आपकी स्पीड कितनी थी. 15 मिनट्स बाद आप लोग चेक कर सकते हो कि अब स्पीड कितनी है. 12 o'clock आप लोग चेक कर सकते हो कि अब स्पीड कितनी है. सो मीन्स एट अ पर्टिकुलर टाइम इंस्टेंट, एट अ पर्टिकुलर टाइम इंटरवल, जब आप लोग एक पर्टिकुलर स्पीड को डिटरमाइन कर सकते हो, ऑब्जर्व कर सकते हो, कैलकुलेट कर सकते हो, उस टाइप की स्पीड को हम क्या कहते हैं? इंस्टेंटेनियस स्पीड. ओके स्टूडेंट्स, आई होप यू हैव अंडरस्टूड टाइप्स ऑफ स्पीड. नाउ नेक्स्ट, coming to types of velocities. Types are same, means uniform velocity, non-uniform velocity, average velocity and instantaneous velocity. So coming to first means uniform velocity. In uniform velocity, a person is traveling 15 kilometer, then 20 kilometer, then 25 kilometer. 5 hours, 5 hours, 5 hours. So is there any uniformity? Yes, of course. First speed 3 kilometer per hour, in the next section 4 kilometer per hour, in the next 5 kilometer per hour. सो एक यूनिफॉर्मिटी है उस जर्नी के दौरान वेलोसिटी में. अगर हम यहाँ एक डायरेक्शन प्रोवाइडेड कर दें कि ईस्ट डायरेक्शन में मूवमेंट हो रही है, तो वही स्पीड किस में चेंज हो जाएगी? वेलोसिटी में. तो यहाँ हम इजीली कह सकते हैं कि एक यूनिफॉर्मिटी नज़र आ रही है वेलोसिटी में. सो इस काइंड की वेलोसिटी क्या होगी? यूनिफॉर्म वेलोसिटी. कमिंग टू नेक्स्ट, दैट इज नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी. आप लोग पहले यूनिफॉर्म की डेफिनेशन लिख लीजिए. व्हेन अ बॉडी ट्रेवल्स इक्वल डिस्प्लेसमेंट्स इन इक्वल टाइम इंटरवल्स. ना आपको एक चेंज दिखा होगा, डिस्प्लेसमेंट वर्ड. ठीक है. स्पीड में हम लोगों ने क्या वर्ड यूज किया था? डिस्टेंस, बिकॉज स्पीड इज एसोसिएटेड विद डिस्टेंस. अब जो है वो हमने स्पीड नहीं कैलकुलेट करनी, अब हमने क्या कैलकुलेट करनी है? यूनिफॉर्म वेलोसिटी. तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी की जब हम बात करते हैं तो वेलोसिटी हमेशा किसके साथ एसोसिएट होती है? डिस्प्लेसमेंट के साथ. तो यहाँ हम डिस्टेंस वर्ड नहीं यूज करेंगे, यहाँ क्या यूज करेंगे? डिस्प्लेसमेंट. सो व्हेन अ बॉडी ट्रेवल्स इक्वल डिस्प्लेसमेंट्स इन इक्वल टाइम इंटरवल्स, that type of velocity is uniform velocity. Okay, coming to next, non-uniform velocity. So definition would be when a body
covers unequal displacements in equal time intervals. मीन्स अब हमें क्या चेंज करनी है, वेलोसिटी चेंज करनी है. डिस्प्लेसमेंट्स कैसी होनी चाहिए, अनइक्वल. इसको जो है हम 3 टाइप से ऑब्टेन कर सकते हैं. फर्स्ट, या तो स्पीड को चेंज करके, या फिर डायरेक्शन को चेंज करके, और या फिर दोनों को ही हम चेंज कर देते हैं, बोथ चेंज. ठीक है. अब कैसे, इन तीनों को डिस्क्राइब करने के लिए हम बेस्ट एग्जांपल लेते हैं सर्कुलर मोशन का. ठीक है. सर्कुलर मोशन जो है इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है और बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत काम आने वाला है आप लोगों को. सपोज अ बॉडी इज ट्रैवलिंग इन अ सर्कल, ओके, इन सर्कुलर पाथ. वी आर टेकिंग पॉइंट ए, बी, सी, D, E, F and G. Suppose 7 points we are taking during this circular motion. देखो, जब भी सर्कुलर मोशन की हम बात करते हैं, जब भी कोई बॉडी सर्कुलर पाथ में ट्रैवल करती है, तो उस दौरान एक पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर अगर हमें उस बॉडी की मूवमेंट की डायरेक्शन फाइंड आउट करनी है, तो हम फाइंड आउट करते हैं उसके टेंजेंट से. ठीक है. Whenever a body is moving in a circular path, तो किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर, जैसे कि मैंने यहाँ 7 पॉइंट्स ड्रॉ किए हैं, इन 7 पॉइंट्स में से किसी भी एक पॉइंट के ऊपर अगर आपको मोशन की डायरेक्शन फाइंड आउट करनी है, तो आप लोग कैसे फाइंड आउट करोगे, टेंजेंट की हेल्प से. नाउ व्हाट इज टेंजेंट? टेंजेंट इज अ लाइन विच इज passing by just touching the circle at a single point. Okay. जब भी किसी सर्कल को एक लाइन एक पॉइंट के ऊपर टच करती है, तो वो लाइन को हम क्या बोलते हैं, टेंजेंट. ठीक है. अब हम यहाँ कंसीडर करके चल रहे हैं कि बॉडी का मोशन कैसा है, क्लॉकवाइज. क्लॉकवाइज मोशन, आई होप यू अंडरस्टैंड. जिस डायरेक्शन में क्लॉक मूव करती है उस टाइप का मोशन क्या होता है, क्लॉकवाइज मोशन. तो अगर हम क्लॉकवाइज मोशन की बात करें, तो ए पॉइंट से किसकी तरफ जाना है, बी पॉइंट के ऊपर. तो ए पॉइंट के ऊपर अगर हम डायरेक्शन फाइंड आउट करने की ट्राई करें, बॉडी किस डायरेक्शन में मूव कर रही है, तो इसके ऊपर हम एक क्या करेंगे, लाइन ड्रॉ करेंगे जो सिर्फ और सिर्फ इस पॉइंट को टच कर रही होगी. ठीक है. सो ये क्या होगा, उस पॉइंट के लिए उसका टेंजेंट. ठीक है. मैंने एरो इस तरफ क्यों ड्रॉ किया, क्योंकि इस तरफ जाना है, बॉडी को ए से बी की तरफ जाना है. अगर हमें बी पर चाहिए डायरेक्शन, तो हम इस टाइप से ड्रॉ करेंगे. अगर सी पर चाहिए तो इस टाइप से, डी, ई, सिमिलरली एफ एंड जी. ओके. सर्कुलर पाथ में जितने भी पॉइंट्स हैं, उनके ऊपर अगर हमें उस बॉडी की डायरेक्शन फाइंड आउट करनी है, तो हम लोग किससे फाइंड आउट करेंगे, टेंजेंट से. मीन्स उस पॉइंट के ऊपर एक लाइन ड्रॉ करेंगे जो सिर्फ और सिर्फ सर्कल को क्या कर रही हो, टच कर रही हो. ठीक है. अब आप लोग देख पा रहे होंगे कि हर एक पॉइंट के ऊपर, चाहे पॉइंट ए है, बी है, सी, डी, ई, एफ, जी, हर एक पॉइंट के ऊपर बॉडी की जो मूवमेंट की डायरेक्शन है वो क्या है, चेंज है, अलग है. किसी भी पॉइंट के ऊपर डायरेक्शन सेम नहीं है. और अगर डायरेक्शन ही चेंज हो गई तो वेलोसिटी विल ऑटोमेटिकली विल बी चेंज्ड. ओके. अगर हर पॉइंट के ऊपर डायरेक्शन चेंज हो रही है, तो डायरेक्शन जो है वो चेंज होने के साथ साथ वेलोसिटी भी क्या होगी, चेंज होगी, क्योंकि वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी, इट इज एसोसिएटेड विद डायरेक्शन. ओके स्टूडेंट्स, तो ये एग्जांपल था आपका नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी. Coming to next, that is average velocity.
Average velocity means ratio of total displacement now. Okay, total displacement divided by total time. अगर आप रेशो वर्ड यूज कर रहे हो तो आप लोग डिवाइड मत यूज करना, मतलब डिवाइड का साइन। और अगर आप लोग रेशो वर्ड यूज कर रहे हो तो आप डायरेक्टली डेफिनेशन क्या लिखोगे, रेशो ऑफ टोटल डिस्प्लेसमेंट टू द टोटल टाइम टेकन। Okay, understood? Now coming to the example. एक पर्सन जो है वो 10 किलोमीटर्स 2 आवर्स में ट्रैवल कर रहा है, 20 किलोमीटर 5 आवर्स में एंड 30 किलोमीटर्स अगेन इन 5 आवर्स। ओके, सो फर्स्ट सेक्शन के लिए अगर हम वेलोसिटी कैलकुलेट करें v1 वो कितनी आएगी, 5 किलोमीटर पर आवर। इस सेक्शन के लिए 4 किलोमीटर पर आवर और इस सेक्शन के लिए 6 किलोमीटर पर आवर। ओके, ये हमने कैसे फाइंड आउट की, वेलोसिटी मीन्स डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। अगेन डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। तो हमारी जो वेलोसिटी आई है v1 दैट इज 5, v2 दैट इज 4 एंड v3 6 किलोमीटर पर आवर। तो अब टोटल जो है वेलोसिटी, ठीक है, एवरेज हम लोग कैसे निकालेंगे, v1 प्लस v2 प्लस v3 डिवाइड बाय 3, ठीक है, बिकॉज 3 वेलोसिटीज है तो हम किससे डिवाइड करेंगे, 3 से। मीन्स 5 प्लस 4 प्लस 6 divided by 3, 15 by 3 it comes out to be 5 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, सो हमारी जो एवरेज वेलोसिटी आई है वो कितनी आई है, 5 किलोमीटर पर आवर। अब इसी को हम टोटल डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाय टोटल टाइम करके देख लेते हैं। ठीक है, एक तो ये मेथड था जो मैंने आपको बताया कि एवरेज निकालने के लिए जितनी हमारे पास वेलोसिटीज हैं डिवाइड बाय नंबर ऑफ वेलोसिटी, तो हमारा जो एवरेज आया वो कितना आया, 5 किलोमीटर पर आवर। इसको हम फॉर्मूला से अगर करें, मीन्स टोटल डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाय टोटल टाइम, 10 प्लस 20 प्लस 30, 2 प्लस 5 प्लस 5, 60 डिवाइड बाय 12, अगेन इट कम्स आउट टू बी 5 किलोमीटर पर आवर। सो मैंने आपको दोनों मेथड्स बता दिए हैं कि हम एवरेज वेलोसिटी को कैसे कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, आंसर हमारा पहले भी यही आ रहा था, 5 किलोमीटर पर आवर, अब भी सेम आ रहा है। कमिंग टू लास्ट टाइप ऑफ वेलोसिटी दैट इज इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी मीन्स द वेलोसिटी एट अ पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम। वेलोसिटी at a particular instant of time। ठीक है, तो जैसे मैंने आपको स्पीडोमीटर का बताया था, स्पीडोमीटर में क्या है कि जो स्पीड कैलकुलेट की जाती है इंस्टेंटेनियस स्पीड, और जब हम लोग ड्राइव करते हैं तो डायरेक्शन हमेशा एसोसिएट होती है हमारे मूवमेंट के साथ, तो उस टाइम जो है हम कह सकते हैं कि वेलोसिटी भी एसोसिएट है, तो दैट टाइप ऑफ वेलोसिटी इज इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। ओके स्टूडेंट्स, आई होप यू गॉट माय पॉइंट। So types of speed, types of velocity both are covered